مشہور سورہ کریمہ سورہ القاریہ تلاوت کی گئی، اور آج ہم اسی سورہ کریمہ کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اس سورہ کریمہ پر تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ القاریہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ جی کیوں؟ وائی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے القاریہ میں ابہام ہے اور دوسرے القاریہ میں تحویل ہے اور تیسرے القاریہ میں تعجیز ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلے القاریہ میں ابہام ہے۔ ابہام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جو اول وہلہ میں کلیئر نہ ہو۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، یہ کلیئر نہیں ہے، تو ابہام کہتے ہیں کہ بات کلیئر نہ ہو اور ذہن مختلف سمتوں میں سفر کرے۔ کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی؟ ابہام ہے، ذہن مختلف سمتوں میں سفر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابہام۔ ابہام پہلے القاریہ میں ابہام ہے۔ ابہام کا مطلب which is not clear، کلیئر نہ ہو اور ذہن مختلف سمتوں میں سفر کرے۔ اور دوسرے القاریہ میں تحویل ہے۔ تحویل means to frighten anything، کسی چیز سے آپ ڈرا دے رہے، آدمی کو ہول آ جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تحویل۔ جی جی۔ اور تیسرے القاریہ میں تعجیز ہے، یعنی پتہ نہیں چل رہا ہے، آدمی عاجز ہے سمجھنے سے، کوئی بتائے تو یہ کیا ہے۔ جیسے میں ایسے کھڑا ہوا ہوں، ایسے کوئی کہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اس کی طرف دیکھ، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس ایکسیڈنٹ میں ابہام ہے، کار الٹ گئی کہ ٹرک الٹ گیا کہ ٹرین ٹریک سے ہٹ گئی کہ کوئی آدمی چھت سے گر گیا، دیکھیں ابہام ہے، دیٹ از ناٹ کلیئر۔ مڑا تو میں، کسی نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سن کر کے میں مڑا تو، لیکن دیٹ از ناٹ کلیئر، ذہن مختلف سمتوں میں سفر کر رہا ہے۔ جی۔ پھر اس کے بعد میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوں، کیسا ایکسیڈنٹ، کیسا حادثہ؟ وہ بولتا ہے حادثہ کیا ہے؟ میں ڈر گیا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کے بول رہا ہے شاید میرے گھر میں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا کسی کا، ہال ہے۔ ڈر گیا۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں، ارے بھائی بتا تو، مجھے معلوم نہیں، میں عاجز ہوں، تعجیز، میں عاجز ہوں، مجھے معلوم نہیں ایکسیڈنٹ کی کیفیت کیا ہے۔ تو پہلے میں ابہام ہے، دوسرے میں تحویل ہے اور تیسرے میں تعجیز ہے۔ جی، عاجز ہے آدمی سمجھنے سے، اس سامنے والا جو حادثے کی خبر دے رہا ہے وہی بتائے گا۔ جی، اسی وجہ سے کہا گیا وما ادراک ما القاریہ۔ دیکھو قرآن حکیم میں 2 ترکیبیں آتی ہیں، ایک ترکیب ہے وما ادراک، آپ کو کیا معلوم؟
क्या आपको पता है? अच्छा, और एक ताबीर है वमा युद्री का, एक है वमा अदरा का, आपको क्या पता है, आपको मालूम है, और एक है वमा युद्री का, इसका भी मतलब वही है, आपको पता है। दोनों में फर्क क्या है? ये देखो यहां आया वमा अदरा का, अच्छा, और सूरह शूरा में आया है वमा युद्री का लअल्ल साअत करीब, फमल फर्क बैन हाज़ैनि तरकीबैन, इन दोनों तरकीबों में फर्क क्या है? क़ाल कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं क़ाल सुफियानु कुल्लु मा क़ाल फ़ीही व मा अदराका फ़क़द अख़बर बिही। अगर अल्लाह किसी चीज के बारे में यह पूछता है वमा अदराका, तो उसकी खबर दे देता है, बता देता है कि वो क्या है। लेकिन जब यह बोलता है वो कुल्लु शैइन क़ाल फ़ीही वमा युद्रीका लम युख़बिर बिही, लेकिन जब यह बोलता है कि वमा युद्रीक, आपको पता है, तुमको पता है, तो बात नहीं बताता जी, आदमी को खबर नहीं होती जी। यहां है वमा अदरा का, इसका मतलब आगे बताया जा रहा है कि वो क्या है, वो इसलिए कि वमा अदराका में बता दिया जाता है कि वो चीज क्या है। अलकारिया का मतलब होता है खड़खड़ाने वाली, टू नोक एट द डोर, दरवाजे को खटखटाना, यह कयामत का एक नाम है जी, अलकारिया। अल्लाह, इसका मतलब यह है कि इतने करीब आ चुकी है ये कि बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, नोक कर रही है, और आदमी है कि गफलत में है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में है। और ये गफलत कैसी अल्लाह फरमा रहा है, ये सोए हुए नहीं है, ये सोते बन रहे हैं जी, ये गफलत एराजी है। ये एक आदमी होता है सोया हुआ हो तो उसको जगाया जाए, एक आदमी जागा हुआ है तो जागे हुए को कैसे जगाया जाए जी, इनकी गफलत एराजी है जी। वहम फी गफलतिन मुरिज़ून, ये सोए हुए नहीं है, सोते बने हुए हैं ये। और कयामत है कि इनके सरों पर आ गई है, इनके दरवाजों तक आ गई है और दरवाजे पर नोक कर रही है। अल्लाह, तो क़रा का मतलब होता है क़रा का मतलब टू नोक एट द डोर, दरवाजे को खटखटाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1440 साल पहले ये फरमाया था कि इक़्तरबतिस्साअ वंशक़्क़ल क़मर, चांद फट गया, कयामत करीब आ गई है। इक़्तरबतिस्साअ, 1440 साल पहले आपने कहा था कि वो करीब हो गई है जी। 1440 साल के बाद अब कितने करीब हो गई है, अंदाजा लगाइए, बिल्कुल करीब है जी, कभी भी आ सकती है, आपके दरवाजे पर खड़ी है जी। नोकिंग एट द डोर, दरवाजे के ऊपर खड़ी है और खटखटा रही दरवाजे को। यह कयामत का एक नाम है, खटखटाना। यह खटखटाना कैसा है? अल्लाहु अकबर। अगर सूरज को खटखटा दे तो सूरज बेनूर हो जाए, चांद को खटखटा दे तो चांद अपनी रोशनी खो दे, सितारों को खटखटा दे तो सितारे झड़ पड़े, कब्रों को खटखटा दे तो कब्रों से मुर्दे निकल पड़े, जमीन को खटखटा दे तो जमीन अपने अस्काल को, अपने बोझों को बाहर निकाल दे जी। आसमान को खटखटा दे तो आसमान भर भरा कर नीचे गिर जाए। लो, यह है अलकारिया। उसी बारे में फरमा रहे अल्लाह तबारक व तआला। क्या समझते हो अलकारिया? सूरज को खटखटा दे तो सूरज अपनी रोशनी खो दे, चांद को खटखटा दे तो चांद बेनूर हो जाए, सितारों को खटखटा दे तो सितारे झड़ पड़े, आसमानों को खटखटा दे तो आसमान गिर जाएं, जमीन को खटखटा दे तो जमीन तहोबाला हो जाए, अपने अस्काल बाहर निकाल दे, कब्रों को खटखटा दे तो कब्रों से मुर्दे निकल पड़े। अलकारिया, खटखटाने। देख रहे हैं आप, यह है कुरान हकीम का अंदाज़ गुफ्तगू और अंदाज़ तकल्लुम, स्टाइल ऑफ टॉकिंग जी जी, बिल्कुल जुदागाना स्टाइल है बोलने की।
इंसान नहीं बोल सकता इस अंदाज से। क्या अंदाज, हमारा रब कैसा बोलता है। अल-कारिया, खटखटाने वाली। ये खड़खड़ाने वाली क्या है? फिर कहा जा रहा है क्या पता तुमको खड़खड़ाने वाली क्या है। पहले में इबाम, दूसरे में तहवील और तीसरे में ताजीज। तुम आजिज हो, नहीं समझ सकते कि अल-कारिया क्या। हम बताते हैं कि अल-कारिया क्या है। जी आगे बताया गया, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस। जी, जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएगा। तमाम इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह। देखो, 3 मर्तबा अल-कारिया कहा गया है और इंसान की 3 हालतें होंगी। जी, और परवानों से तशबीह दी गई, परवानों की भी 3 हालतें। जी, कैसे? परवाने जो पतंगे होते हैं, पतंगे जो होते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। बरसात में कहीं लाइट जला दीजिए, इसे लाइट जल रही है, ये लाइट है जी, जल रही है एक जगह पे। पतंगे रोशनी देखते हैं, कोई उधर से आ रहा है, 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 कोई इधर से आ रहा है। चारों तरफ से पतंगे निकल पड़ते हैं अपनी अपनी जगहों से। जी, वो जमीन में होते हैं, छुपे हुए होते हैं कहीं। जी, और जब रोशनी देखते हैं तो कोई उधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से। चारों तरफ से निकल पड़ते हैं। पहले तो दिखाई नहीं देते हैं कहां ये, लेकिन जब रोशनी होती है तो सबको सब दिखाई देने लगते हैं, अपनी अपनी जगहों से निकल पड़ते हैं। जी, एक हालत निकल पड़े अपनी जगहों से। दूसरी हालत अल-मुतफर्रिक अल-मुंतशिर फी जव्विस समा, फजा के अंदर तमाम के तमाम बिखरे हुए हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अल-मुतफर्रिक अल-मुंतशिर फी जव्विस समा, निकले तो अपनी जगह से, लेकिन अब मुतफर्रिक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और सब जी फजा में मुंतशिर है, मुतफर्रिक। और तीसरे नंबर पे उस रोशनी की तरफ भागते हैं। ये तीसरी हालत है, अपनी जगहों से निकले, फजा में मुंतशिर हुए। पहली हालत वो जहां है वो, दूसरी हालत निकल करके वो फजा में मुंतशिर हो गए, मुतफर्रिक हो गए, दूसरी हालत। तीसरी हालत रोशनी की तरफ भागते हैं। ये निकले क्यों हैं? रोशनी देखी है ना, अब रोशनी का सफर देखते हैं, रोशनी की समत देखते हैं, रोशनी उधर है, अब भागते। ये तीसरी हालत है परवानों की। ऐसे ही जब ये खटखटाएगी कब्रों को, दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, लेकिन जैसे ही खटखटाएगी, जहां से आपको वहमो गुमान भी ना होगा, खड़ा हो जाएगा आदमी। अरे यहां मुर्दा था, जी यहां मुर्दा था। तो कोई मुर्दा यहां से निकल रहा है, कोई मुर्दा उधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। उसके बाद सारे के सारे जमा हो रहे हैं। जैसे ये पतंगे निकल करके फजा में मुतफर्रिक और मुंतशिर हैं, ऐसे ही कब्रों को खटखटाने के बाद कब्रों से मुर्दे निकल पड़ेंगे और सब मुतफर्रिक, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अरे क्या हुआ? कोई पूछ रहा क्या हुआ, कोई पूछ रहा क्या हुआ। तो जैसे वो मुंतशिर है, तैसे इंसान भी मुंतशिर है। फिर उसके बाद एक पुकारने वाला पुकारता है, जाना कहां है, आओ इधर आओ। यौम यदुद्दा इला शैइन नुकुर। जी, एक पुकारने वाला पुकारेगा, कहां भाग रहे हो, इधर आओ, कहीं नहीं जा सकते। फतवल्ला अन्हुम, मेरे हबीब आप उनका चक्कर छोड़िए, एराज कीजिए उनसे, उनको पता लग जाएगा। यौम यदुद्दा, अरबी में यदू लिखा जाता है ऐसे, ये दाल जबर यद, एन वाव पेश उ, यदउ, वाव रहता है यहां जी। और अद्दाई कैसे लिखा जाता है? अद्दाई, यानी एन के बाद ये, यदउ में एन के बाद वाव, यद उ, एन के बाद वाव, और अद्दाई में ई, एन के बाद या। लेकिन यहां दोनों को हस्फ कर दिया गया है। खोल करके देखिए मुसहफ को, न वाव है और न या है, जबकि जरूरत थी कि यहां लाया जाता। यौम यदुद्दा, यदउ नहीं है, अद्दाई नहीं है,
यदू से वाव को गिरा दिया गया और दाई से या को गिरा दिया गया। क्यों? इसलिए कि यहां अद्दाई से मुराद वो जो बुलाने वाला है जी, मतलब है सुरा, तेजी, तेजी से पुकार रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, भागो। इसी वजह से जब यहां तेजी होती है ना तो अल्फाज को हस्फ कर दिया जाता है। जैसे सांप दिखाई दे और कोई आदमी बेख्याली में उधर से गुजर रहा है, वो देख नहीं रहा सांप को, तो आप ये थोड़ी कहेंगे अरे भाई वहां सांप है, सांप से बचो। ये तमाम जुमले हज़फ कर देता है। क्या बोलता? अल-हय्या, अरे सांप, स्नेक, देखो सब हज़फ कर दिया उसने। ये नहीं कह रहा हो अरे भाई सांप जा रहा है, सांप काट लेगा, बच सांप से, कुछ नहीं, सिर्फ बोलता है स्नेक, अल-हय्या। तो तेजी जहां मुराद होती है वहां पर लफ्जों को हज़फ कर दिया जाता है। तो यहां सुरात को बताने के लिए या को हज़फ कर दिया गया है। वो दाई कैसा है? बड़ी तेजी से पुकार रहा है। और यदो में वाव को हज़फ कर दिया गया, उसकी पुकार बड़ी तेज है जी जी। वाव को हज़फ कर दिया गया, या को हज़फ कर दिया गया। और किस तरफ बुलाया जा रहा है? अल्लाहु अकबर। कुरान हकीम में लफ्ज एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, नुकुर। एक है नुकुर, नून पेशनू का पेशकू, नुकू, रे दो पेशरुन, नुकुरुन जी। नून पर भी पेश और काफ पर पेश है, नुकुर। और एक है नुक्र जी। सूरह कहफ में आज आप देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खजीर से कह रहे हैं लक़द जीत शैअन नुक्रा, नुक काफ पर जज्म है और यहां काफ पर पेश है। और कुरान हकीम में नुक्र कई बार आया है, 2-3 बार आया है, लेकिन नुकुर सिर्फ एक बार आया है। अल्लाहु अकबर। जानते हैं नुकुर किसको बोलते हैं? फहुवल अमरुल अज़ीम अल फज़ील अल हाइल लम तालफुन नुफूस वलम तारिफ लहु मसीलन फी शिद्दा। ये ऐसी चीज होगी, ये जिसकी तरफ पुकार रहा है वो पुकारने वाला, ये ऐसी चीज होगी, ये पुकारने वाला भी अजीब है, ये पुकार भी अजीब है, और जिसकी तरफ उसे पुकारा जा रहा है इंसानों को, वो चीज भी अजीब है। यानी लम तालफुन नुफूस, नुफूस इंसान उससे मानूस नहीं है, और इस तरीके की चीज उसने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। तो जब जिंदगी में कभी देखी ही नहीं, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज को एक ही बार जिक्र फरमाया है, आजा, यही एक बार देख ले, इससे पहले तूने नहीं देखा होगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फसुब्हान मन हाज़ा कलामुहु। एक ही बार है नुकुर, इसलिए कि तुमने कभी देखा ही नहीं जी, और अब देख रहे हो, एक ही बार देखोगे जी, इससे पहले तुमने देखा नहीं, एक ही बार देखोगे। इसी वजह से कुरान में यह लफ्ज सिर्फ एक बार आया है, फतवल्ला अन्हुम यौम यदउ दाई इला शैइन नुकुर। बड़ी तेजी से पुकारेगा वो, पुकारने वाला भी तेजी से पुकार रहा है और उसकी पुकार के अंदर भी तेजी है। पुकारने वाला तेजी से पुकार रहा है और उसकी पुकार में भी तेजी है, लिहाजा यदऊ से वाव को गिरा दिया गया और दाई से या को गिरा दिया गया, ताकि यह दलील हो सुरात के ऊपर, तेजी के ऊपर जी, हरीनेस के ऊपर, हरी के ऊपर दलील ये। और नुकुर एक बार लाया गया इसलिए कि इससे पहले इंसान ने ऐसी चीज देखी ही नहीं है। लम तालफुन नुफूस। तो जो आगे आ रही है उसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तैयारी करो, बहुत खौफनाक चीज है, बहुत खौफनाक है जी। अल्लाह। तो नुकुर का यह मतलब है कि कभी देखा ही नहीं, एक ही बार देखेगा। और नुकुर का मतलब होता है फहुवल अमरुल अजीम, ऐसी अजीम चीज कि यस्तगरिबुल इंसान, इंसान उसको देख करके मुताज्जिब तो हो देख करके, वो युनकिर, और वो ये समझे कि ये ठीक नहीं है, रग़मा अन्नहु फी हकीकती सिद्क़ुन व सवाब, जबकि हकीकत में वो चीज सही होती है। नहीं समझे? मतलब यह है कि नुक्र का मतलब होता है, नुक्र के आदमी पहले समझता है कि भाई ये ठीक नहीं है, आदमी उसको ठीक नहीं समझता, लेकिन हकीकत में वो ठीक होती है, उसको कहते हैं नुक्र। जैसे हजरत खजीर ने उस लड़के की गर्दन मरोड़ दी, मार डाला। बज़ाहिर ये चीज ऐसी है कि इंसान कहे ये सही नहीं है, लेकिन हजरत खजीर ने बताया कि मैंने उसकी गर्दन क्यों मरोड़ दी, उसको मार डाला। तो एक चीज
हजरत मूसा को खराब दिख रही है लेकिन हकीकत में वो सही है। लिहाजा नुक्र कहते हैं कि बज़ाहिर वो खराब हो मगर हकीकत में सही हो। रग़मान फी हकीकत सिद्क़, हकीकत में सच हो, उसको नुक्र बोलते हैं। और नुक्र तो 3-4 बार आया है, 2-3 बार, लेकिन नुक्र सिर्फ एक बार आया कि इंसान ने इससे पहले देखा ही नहीं जिस चीज की तरफ उसे बुलाया जा रहा है। जी, तो परवानों की 3 हालतें, पतंगों की कहीं छुपे हुए हैं जी, उसके बाद मुतफर्रिक हुए, जैसे ये रोशनी है, रोशनी देखकर सब निकले हैं, जैसे वहां आवाज देगा तो इंसानों की 3 हालतें अपनी जगहों से निकल पड़ेंगे, मुतफर्रिक बिखरे हुए होंगे, बिखरने के बाद सीधे आवाज की तरफ भागेंगे, जैसे पतंगे छुपे हुए हैं, उसके बाद जब रोशनी देखते हैं तो निकलते हैं अपनी जगहों से, फिर मुतफर्रिक होते हैं, फिर दौड़ते हैं रोशनी की तरफ। लिहाजा जिस तरह परवानों की 3 हालतें हैं इसी तरीके से इंसानों की 3 हालतें हैं खटखटाने के बाद। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह, बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएगा। और सारे के सारे एक ही ड्रेस में, सारे के सारे एक ही ड्रेस में। ड्रेस कैसा? फितरी ड्रेस, नंगा, टोटली न्यूड, नंगा, औरतें भी नंगी, मर्द भी नंगे, सब फितरी लिबास, कोई लिबास इनके बदन पर नहीं होगा। अल्लाह, पतंगों के बदन पर भी कोई लिबास नहीं होता। लिहाजा इंसान जब अपनी कब्रों से निकलेंगे सब के सब नंगे होंगे। एक नुक्ता, कहीं कहा गया अल कुबूर, कब्रों से निकलेंगे, और कहीं कहा गया ये अजदास से निकलेंगे। है मल फर्क बैन अल कुबूर वल अजदास? कुबूर कहते हैं ऐसी कब्रों को जिसका निशान जाहिर हो, अच्छा ये कब्र है, और अजदास कहते हैं उन कब्रों को जो बेनिशा हो, पता ना चलता हो कि यहां कब्र थी। बास कब्रें निशान ज़दा होती है, मालूम हो जाता है ये कब्र है, और बास कब्रें हम नहीं जानते कि यहां कब्र है, बेनिशा है। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें मालूम नहीं, हमें मालूम है। वो जो जाहिर कब्रें हैं वहां से भी मुर्दा निकल पड़ेगा, और जिन कब्रों के बारे में तुम्हें मालूमात नहीं है वो बेनिशा है, वहां से भी देखोगे अचानक खड़ा हो जाएगा आदमी, लो। और जदस से निकलेंगे, जदस यानी वो बेनिशान जो कब्रें हैं, जो बेनिशान हैं, वहां से निकलेंगे। जदस क्यों कहा गया? अल्लाह अकबर। जदस कहते हैं सौतुल हाफिर इन द रक्स, घोड़ा दौड़ रहा हो तो घोड़े के दौड़ते वक्त जो आवाज होती है टाप की, टप 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 टप, ऐसा सौतुल हाफिर इन द रक्स, घोड़े के दौड़ते वक्त उसकी जो आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड जदसा। इसका मतलब यह होगा कि कब्रों से निकलने के बाद जब भागेंगे तो उनके कदमों की आवाज सुनाई देगी, भाग रहे हैं। घोड़ा तेजी से भागता है तब उसके टापों की आवाज सुनाई देती है। जी, ट्रेन धीरे धीरे चले, धीरे धीरे तो पटरी से आग नहीं निकलती, लेकिन आप देखें जब ट्रेन फुल स्पीड में होती है तो पटरियों से आग निकलती हुई दिखाई देती है। जी, ऐसे घोड़ा धीरे धीरे चले तो उसकी टाप की आवाज नहीं आती, जब वो बड़ी तेजी से दौड़ता है टप 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 टप, तब उसके टापों की आवाज आती है। अल्लाह फरमा रहा है तुम अपनी कब्रों से इस तरह निकलोगे, भागोगे जैसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है, ऐसे तुम्हारे भागने की, तुम्हारे कदमों की आवाज होगी। जदस है सौतुल हाफिर इन द रक्स, भागेगा आदमी, भागेगा। और किस तरह मिसाल दी गई, कान्नहुम जरादुम मुंतशिर, जैसे बिखरी हुई टिड्डियां हो। यहां कहा गया जैसे बिखरे हुए परवाने हो। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा बिखरे हुए मच्छर, मच्छर भी तो भागते हैं निकल करके रोशनी की तरफ। जी, कीड़े मकोड़े भी तो भागते हैं, परवाने और टिड्डियां, इन्हीं दोनों की मिसाल क्यों लाई गई? इस वजह से कि ये 2 मखलूकात ऐसी हैं जिनका कोई घर नहीं होता। ला वतन लहु वला मकर, न जरात का कोई घर होता है और न परवानों का कोई घर होता है, कोई घर नहीं होता इनका। ऐसे ही जो लोग कब्रों से निकले इनका कोई घर नहीं है, इनके बदन के ऊपर लिबास नहीं है। घर तो छोड़िए, घर होता तो बेलिबास क्यों निकलते? टिड्डी ला वतन लहु मकर, टिड्डी का कोई घर नहीं होता, खानमा बर्बाद होते हैं ये। और पतंगों का भी कोई घर नहीं होता, खानमा बर्बाद होते हैं,
तशबीह कितनी आला है कि इंसान अपनी कब्र से निकलेगा, उसका कोई घर नहीं है, तो उसका कोई घर नहीं, बदन पर लिबास नहीं है, तंग, टिट्टी, ला वतन लहु वला मकर, दोनों के घर नहीं, दोनों खानमा बर्बाद होते। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, अल्लाह ने फरमाया कि तुम बिखरे हुए परवानों की तरह निकलोगे। परवानों की तीन हालतें जगह पर हैं, निकले मुतफर्रिक हैं, बिखरे हुए हैं, और फिर रोशनी की तरफ भाग रहे हैं। इंसान दिखाई नहीं देता, कब्रों में है जी। और इंसान के इस घर की भी तीन हालतें हैं जी। एक तो कब्र में होगा जी, वहां, और एक है जला करके राख बना दिया गया, उड़ा दिया गया, उसके जर्रात मुख्तलिफ जगहों पर हैं। दो, और तीसरी हालत है किसी जानवर ने उसको खा लिया है, वो उसके बदन का जुज बन गया। तीन ही हालत है इंसान की मरने के बाद जी। सारी जगहों से निकल पड़ेंगे, कब्र से निकल पड़ेंगे। जो जर्रात बिखरे हुए सारे जर्रात इकट्ठे हो जाएंगे, जिस आदमी के जो जर्रात हैं सारे जर्रात इकट्ठे होकर के आदमी खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी हालत उसकी तेजीब गरीब है। अगर किसी जानवर के पेट में है, जुज बन गया, वहां से वो निकल पड़ेगा। इंसानों की तीन हालत। ये तो पतंगों से तशबीह दी गई, जरात से तशबीह दी गई, टिड्डी से, लोकस्ट पतंगे, टिड्डी, अलजरात, लोकस्ट, टिड्डी। उसके बाद फरमाया गया इंसान का तस्करा पहले किया गया इसलिए कि ये तमाम मखलूकात से आला है, इसलिए इंसान का तस्करा पहले किया गया। फिर सबसे मजबूत चीज दुनिया की पहाड़ हैं, अल्लाह ने उनका तस्करा फरमाया कि इंसान तो बहुत कमजोर है बिलमुकाबिल पहाड़ के। देख पहाड़ कितने मजबूत होते हैं, तेरी हैसियत ही क्या है, पहाड़ों को देख। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। पहाड़ों की भी तीन हालतें जी। पहाड़ एक तो जमीन पर खड़े हैं, हदशय, ये पहली हालत है। उसके बाद इनको उठाकर पीस दिया जाएगा, मदकूक। वो हुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, एक ही बार उनको पीस करके रख दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो एक हालत तो इनकी है जो दिखाई देती है, खड़े हैं वो अपनी जगह पर, ये पहली हालत है। और दूसरी हालत मदकूक है, उनको पीस दिया जाएगा। और तीसरी हालत है हबा मंसूर, उड़ा दिया जाएगा उनको। हे। और रूई की भी तीन हालत है। रूई की एक तो खेत में है, पौधे में है, ये पहली हालत है जी, वहां खेत में है। और उसके बाद लाया गया तो वो जो धुनिया होता धुनता है, वो धुन रहा है उसको, मनफूश। एक तो खेत में है और दूसरे धुना गया उसको, मनफूश। और तीसरे धुनने के बाद जो वहां रखी हुई है उसको उड़ा दिया गया। रूई की भी तीन हालतें। अंदाज़ बयान है कुरान हकीम का। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। ये पहाड़ जो तुमसे कहीं ज्यादा सख्त हैं, कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कहीं ज्यादा असलब हैं, अशद है तुमसे, लेकिन इनकी हालत क्या होगी? जैसे रूई बहुत हल्की होती है, इस वजनी चीज को हम बिल्कुल हल्की बना देंगे रूई की तरह, इसलिए कि रूई से ज्यादा कोई चीज हल्की नहीं होती। जो चीज बहुत ज्यादा वजनी है हम उसे हवा मंसूरा कर देंगे। एक वजनदार चीज को बेवजन कर देना, अल्लाह अकबर, कितनी अजीब गरीब बात है। कुदरत देख रहे हैं हमारे रब की। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। और पहाड़ों को हम रूई के गालों की तरह उड़ा देंगे। पहाड़ों की तीन हालतें और रूई की तीन हालतें जी। हाय है। कारिया ने अपना काम कर दिया है जी, कारिया ने अपना काम कर दिया है। अच्छा एक बात और बताएगी कि जब वो पुकारने वाला पुकारेगा, बताते कि इसराफील है या कोई भी है, फरिश्ता है, पुकारेगा, इधर आओ, कहां जा रहे हो? कहीं नहीं जा सकते तुम, कहीं नहीं जा सकते, इधर आओ। यौम यदउ दाई इला शैइन नुकुर, एक खौफनाक चीज, एक हॉरिबल चीज की तरफ, जिसे इंसान ने कभी देखा ना उसकी तरफ बुला। अब आदमी भाग रहा है,
तो आदमी जब भागता है तो कैसे भागता है? सामने देखता है भागता है। अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया की तरह भागना नहीं है, आवाज की तरफ। आदमी देखता है, भागता है। कार चलाता है बड़ी तेजी से, सामने ही देखता है, दाएं बाएं नहीं देखता है, इसलिए तेजी से चलना है। यहां आलम यह है खुशान अब्सारुहुम, निगाहें झुकी हुई होंगी। बहुत निगाहें उठा ली तुमने, बहुत सर उठा लिए तुमने, आज तुम्हारी निगाहें झुकी होनी चाहिए। एक सवाल यह है कि निगाहें झुकी हुई क्यों होगी? सिर्फ निगाहों का तस्करा किया गया है। कयामत में आदमी के भागने का जो अंदाज है, उस अंदाज में सिर्फ एक बात को हाईलाइट किया गया है कि उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। जी, खुशान अब्सारुहुम खाशिअतन अब्सारुहुम, इस तरीके की बात कही जा रही। क्यों? इसलिए कि बदन के किसी हिस्से से खौफ का इजहार नहीं होता। आंखें वो ऐसे आज़ा हैं, ऐसा उज़्म है कि दुनिया के तमाम जज्बात का इजहार कर सकती हैं। जी, गुस्सा, जिल्लत, दुनिया के तमाम जज्बों का इजहार आंखें करती हैं। आदमी डरा हुआ हो, आंखें बता देती हैं कि आदमी डरा हुआ है, खौफ। तो दुनिया के जितने भी जज्बात हैं, जितने भी इंसानी जज्बात हैं, तमाम जज्बात के इजहार का सिर्फ एक ही जरिया है, बसर, आंख। जी जी जी। तो जानते हैं दिल जब रोता है तो उसकी तर्जमानी यही करती है। दिल रोता है ना, दिल, तो तर्जमानी कौन करता है? आंखें करती। पानी यहां से निकलता है और रोता किधर है? दिल रोता है अंदर से। अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब के जरिए बदकर अल्लाह खालियन फफाज़तैना, आदमी तन्हाई में हो और अल्लाह को याद करे और उसकी आंखें बह पड़े। दिल याद करता है, मगर आंसू कहां से निकलते हैं? पानी कहां से निकलता है? आंखों से। यानी आंखों का डायरेक्ट ताल्लुक दिल से है। दिल खुश हो तो आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं, दुमूल फरह बारिदा। और अगर गम के आंसू हो तो वो साखिना, गर्म होते हैं, इसलिए कि उस वक्त दिल जल रहा होता है। जी जी। ओ वो ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़तैना। अच्छा, कारिया ने अपना काम कर दिया है, सब आ गए हैं, एक जगह जमा हो गए हैं, इसलिए कि भाग कर कहीं नहीं जा सकते, सब आ गए वहां। अल्लाह फरमा रहा है अब तुम्हारी जिंदगी के करतूतों का पूरा पूरा हिसाब लिया जाने वाला है। जी, अल कारिया मल कारिया वमा अदराक मल कारिया। 3 यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। पतिंगों की 3 हालतें, जी, इंसानों की 3 हालतें। और पहाड़ों की 3 हालतें। वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। अच्छा, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया। मवाज़ीन कायम किए गए हैं। जी जी, पहुंच गया वहां पर जहां पहुंचना था। अब अपने करतूतों का हिसाब किताब देना है। देखो, यहां गिन करके अमलों को जजा नहीं दी जा रही है, जजा सजा तौल करके दी जा रही है। जी जी, यानी गोया अल्लाह के यहां कसरत अहमियत नहीं रखती, कसरत अहमियत नहीं रखती, बल्कि अखलस अहमियत रखती है। कसरत नहीं, खुलूस अहमियत रखता है। जैसे रमजान का एक महीना है, अगर आप इस महीने रोजा ना रखें, पूरी जिंदगी आप रोजे रखते रहें, इस एक महीने के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। देखो, महीना एक ही है, जिंदगी भर अगर रोजे रखते इसके बराबर नहीं, क्योंकि इसका वजन है। तो आप देखें कि कसरत की कोई वकात नहीं है इस वजन के मुकाबले में। फर्ज नमाज आप ना पढ़ें, आप कितनी भी नफलें पढ़ें, एक फर्ज छोड़ दें, 1000 नफलें पढ़ें, इन 1000 नफलों की कोई वकात नहीं है। तादाद में ज्यादा है ना, मगर कीमत में ज्यादा कौन है? फर्ज। तो अल्लाह कीमत देखता है, इसी वजह से ये नहीं कहता कि तुम में कौन ज्यादा अमल करने वाला है, ये कहता है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। हमारे यहां क्वालिटी की अहमियत है, क्वांटिटी की अहमियत नहीं है। वरना महीने भर रोजा रखना ऐसा है कि आदमी पूरे महीने का रोजा तो छोड़ो, एक रोजा छोड़ दे तो जिंदगी भर अगर रोजा रखता रहे, इस एक महीने के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि कीमत में ये ज्यादा है। अल्लाह के नजदीक क्वांटिटी अहमियत नहीं रखती, क्वालिटी अहमियत रखती है। लिहाजा क्वांटिटी को
जानने के लिए एक ही 3 तरीके हैं इसके भी जी। किसी चीज के हिसाब के 3 तरीके हैं, ऐसे नहीं लाएगा 3 मरतबा अलकारिया, गौर करोगे तो 3 है। एक तो आदमी अंदाजे से करता है, अंदाजे से हिसाब लगाता है। ये दरख्त अच्छा इतने फल हैं, ठीक है मैं खरीदता हूं इसको, कितने में दे रहे हो? बोले 1 लाख में, ठीक है ये दरख्त मैंने फलों के साथ 1 लाख में खरीदा। ये जो आपने हिसाब लगाया है कैसे? बिलअक्ल बिलकयास, अंदाजे से। और एक है भाई ये केला कितने में दे रहे हो? बोले 20 रुपया दर्जन है, अच्छा अच्छा दे दो 1 दर्जन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खुश ले, गिन करके दिया जी। और एक है भाई सोना लेना है, कितने लेना है? बोले 1 तोला। तब वो गिनेगा थोड़ी, वो डायरेक्ट तराजू के ऊपर रखेगा वो। इसका मतलब आमाल आदमी के सोने या पीतल की तरह है जी जी। काफिरों के आमाल पीतल की तरह है और मोमिनों के आमाल सोने की तरह है। कीमत असल रखती है, क्वालिटी असल है, क्वांटिटी अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। फअम्मा मन सकुलत मवाजीन, अच्छा यहां तराजू नहीं है, तराजुए हैं। मीजान की जमा मवाजीन, इसलिए कि तराजू एक नहीं है, मुख्तलिफ तराजुए लगी हुई हैं। चलो जितने हराम खोर हो यहां आ जाओ, हराम खाने वालों चलो चलो आ जाओ यहां। यहां हराम खाने वाले की हराम चीजों को तौला जा रहा है, एक मीजान लगे। हलाल खाने वाले इधर आ जाओ, यहां हलाल चीजें तौली जा रही हैं। अच्छा चलो बदकार लोग आ जाओ, कौन सी बदकारी करने वाले हो? चलो इस किस्म की बदकारी करने वालों के अमाल का वजन हो रहा है। तो जितने अमाल हैं उतने किस्म की मीजान है, इसी वजह से मीजान नहीं कहा गया, मवाजीन कहा गया। हर अमल को तौलने के लिए अलग अलग मीजाने हैं, इसी वजह से मीजान की जमा मवाजीन लाई गई। ला मीजान नहीं, अल मवाजीन। फअम्मा मन सकुलत मवाजीन, प्लूरल लाएगा, सिंगुलर नहीं। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु, अच्छा अब तौले जा रहे हैं। हिसाब के 3 तरीके, कयास, गिनना, तौलना। अब तौले गए तो आमाल की भी 3 किस्में जी, आमाल की 3 किस्में। रजहत हसनातुहु अला सय्यिआतिही, नेकियां भारी हो गई बुराइयों पर, एक। और उसके बाद रजहत सय्यिआतुहु अला हसनातिही, बुराइयां भारी पड़ गई नेकियों पर। तसावत हसनातुहुम व सय्यिआतुहुम, नेकी और बुराई दोनों बराबर हो गई। 3 ही तरीके। इसी वजह से जगह भी 3 है, जन्नत, जहन्नम, आराफ जी। जिनकी नेकियां ज्यादा है जन्नत में चले जाएं, और जिनकी बुराइयां ज्यादा है वो जहन्नम में चले जाएं। जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर है, जरा ठहर जाएं आराफ के अंदर, न जन्नत है न जहन्नम है, बीच में खड़े रहो यहां, जब तक तुम्हारे बारे में कंफर्मेशन ना हो जाए तुम्हें जाना किधर है जी। जगह भी 3 है। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया जी। अगर आदमी का अमल नेक है, भारी हो गया तो उसके लिए ईशतिर राज़िया, ऐसी जिंदगी है, ऐसा ऐश है जो राजी हो। एक होता है आदमी को कोई नेमत मिले तो आदमी उस नेमत से राजी हो जाए, कोई ऐश मिले तो आदमी उस ऐश से राजी हो जाए। यहां उल्टा कहा गया, फरमाया गया ऐसी नेमतें दी जाएंगी, नेमतें तुमसे राजी हो जाएंगी। आदमी किसी चीज से राजी होता है तो उसको ढूंढता है? ढूंढता है, लेकिन वो चीज अगर उससे राजी हो जाए तो वो चीज खुद उसको ढूंढती है। तो जन्नत की नेमतों को आपको ढूंढना नहीं है, जन्नत की नेमतें खुद आपको ढूंढ लगी, आप कहां हैं जी। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया ला मर्जिया, राजिया, राजी करने वाली, खुश करने वाली नेमत ये। ऐसा है कि जिंदगी तुम्हें तलाश करे, तुम्हें जिंदगी को तलाश नहीं करना है, तुम्हें नेमत को तलाश करना है। नेमत तुम्हें खुद तलाश रही है, इसलिए कि तुमसे राजी है। यह है कुरान हकीम की स्टाइल ऑफ टॉकिंग जी। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फहुव हाविया जी। जिसकी बुराइयां ज्यादा हो गई, चल इधर आ, बाजू में बाजू लग, बाजू इधर आ जा, चल। ये पुराने बदमाश हैं सब, खड़ा करो इनको एक तरफ। अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फहुव हाविया, जमा कर दिए गए। कहा कि ये बच्चे जो है किधर जाएंगे? बोले इनकी अम्मा के पास भेज दो, इनकी अम्मा के पास भेजो, अम्मा के पास। फउम्मुहु हाविया, उम मींस मदर। ये बच्चे जो एक तरफ हैं, ये बदमाश बच्चे, इन बदमाश बच्चों को भेजा कहां जाए? एक तरफ तो लगा दिया गया, कहा कि इनकी अम्मा के पास भेज दो।
جی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کی ماں ہاویہ. اللہ، گویا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی شفیق ہوتی ہے. ماں بچے کو دیکھتی ہے، اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے. جی یہ دنیا کی ماں ہے. جہنم کیسی ماں ہے؟ یہ عجیب و غریب قسم کی ماں ہے. جی عجیب، تصور نہیں کر سکتے آپ اس ماں کا، کیسی خوفناک ماں ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. پھر وہ پوچھ رہا ہے اللہ، معلوم ہے تمہیں یہ ہاویہ کیا ہے؟ تم نہیں جان سکتے، تعجیز، تم عاجز ہو. ہم بتا دیتے ہیں، ہم بتا دیتے. نار حامیہ، گرم آگ ہے. نکتہ بتاؤں؟ نار تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نار، اور کہ آگ ہے. یہ آگ خود گرم ہوتی ہے. کوئی پوچھے ماذا، یہ کیا ہے؟ یہ مہاوی، یہ کیا ہے؟ نار، آگ ہے. یہ آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ گرم آگ ہے؟ گرم آگ ہے. آگ تو خود گرم ہوتی ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ فرما رہے گرم آگ ہے، جبکہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ آگ ہے یہ. اب آگ بنانے والا اگر بتائے کہ یہ گرم آگ ہے، یہ آگ ہے مگر گرم ہے. اگر آگ بنانے والا یہ بتائے کہ آگ گرم ہے تو اس کی گرمی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ اکبر. اس وجہ سے نار کی صفت حامیہ لائی گئی. اللہ اکبر. اس سورہ کریمہ کو بار بار پڑھو، دل کٹ جائے گا. دل کٹ جائے گا. اللہ نے اسی لیے تو اتاری ہے آیت ہے ہمارے لیے کہ ہم سدھریں، اپنی زندگی کو بدلیں. لیکن مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے تو ہیں مگر تدبر نہیں کرتے. یہ میں نے تدبر کا ایک انداز بتایا ہے کہ قرآن حکیم پر تدبر کیسے کیا جاتا ہے، قرآن حکیم پر غور کس طرح کیا جاتا ہے. اور آدمی جتنا تدبر کرے گا، چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہے. جی یہ دل کے اوپر اترا ہے قرآن. اے ہمارے حبیب، ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے. گویا قرآن کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے قلب سے، اس کا کنیکشن دل سے ہے. آدمی جب دل سے اس کو پڑھے گا تو نہ اثر قبول کریں گے. جب دل سے اس کو پڑھو گے نہیں تو دل اثر کیا قبول کریں گے؟ مشکل ہے، ایسی مشکل ہے. مشکل یہاں ہے، پرابلم یہاں ہے. پرابلم یہاں ہے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں ایسی ماں سے بچائے جس ماں کے بچے ایسی خوفناک ماں کی آغوش میں جانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.